Okay, we'll start the session. The recording has also started, and other settings are also done. Okay, so let us start with the new topic of our first chapter, that is introduction to networking. Okay, so this is the next topic we are having right now, that is network devices or networking devices. Basically, we will find these different types of network devices which are used at different locations. Okay, at different situations, these devices are used. Okay, we'll see one by one where these devices are used and how they work actually. Okay, we are not having much of this topic, that is network devices. Very rare these questions are asked in examination. Right now they have just put some introductory part of this devices. Okay, so let us start with the first device, that is repeater. Okay, the very first device, repeater, is the one, the very first device, that is repeater, which functions at the physical layer. Now you will have to remember the thing that where these devices are working, at which layer these devices are working. Okay, for all the devices like repeater, modem, and switches, bridge. So all these devices are there, but they function at which layer? So this question may be asked in Viva examination. Okay, so you should know and you must remember that where these devices works actually or function. So our repeater is a device which function at the physical layer. If because we have not covered till now, we have not covered the OSI reference model, so you will find something odd, because OSI reference model will start from this slide. Okay, so you will come to know one easy step by step. You will come to know, okay, what are these layers. You will find the physical layer. If I'm not wrong, this is a physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, application. Okay, so we'll learn the whole structure how this OSI reference model is also working. Okay, so come to the repeater. So this networking device, that is repeater, works at the physical layer. Okay, you need to remember this. Okay, now what is the function and the task of the repeater? Basically, the repeater is the device which is basically used to repeat the signals. Okay. Why there's a need of repeating the signals? Okay. So if you just imagine that you are connecting two computers. Okay. Just think that you are using and you are connecting two computers, or you are forming a network in which you have to connect two computers which are far away from each other. Okay. Or second example, you are having two networks at different locations. You are having two networks, okay, two LANs which are situated at different locations, and you want to connect these two network or two LANs. Okay, अब इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है, so obviously you need some transmission media. अब वो आपका डेटा हवा में तो जाने वाला नहीं है. You need some sort of transmission media. Okay, in the later chapter we will come to know about what is transmission media. I told you in the previous lecture, I think so. Transmission media, we are having two types of transmission media: wired and wireless. Okay, so transmission media are of two types. So which the wired is called the guided transmission media, and the wireless is called as unguided transmission media. Okay, okay, not visible. I think so. Excuse me. Okay, not working. Sorry for the disturbance. So we are having two network and we want to connect these two networks. Okay, these two lines. Okay, if I want to connect these two lines, then I need one transmission media. Okay, maybe it is a wired transmission media or a wireless transmission media. Okay, anything. So if I'm using the wired transmission media, okay, just imagine that I cannot use the wireless transmission right now. I have to use the guided transmission media or wired transmission media, जिसके अंदर वायर हमको लगेगी. Okay, जब आप इसको वायर से यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इमेजिन, जस्ट इमेजिन कर लो, बिकॉज वी हैव वी हैव the whole location in your mind. Imagine your campus. Okay, your AIKTC campus. Okay, and your Pilnes campus. Okay, you want to connect these two campuses. Okay, via
transmission media, and the transmission media is the guided transmission media. You want to connect it with the help of twisted pair cable, coaxial cable, or any type of cable you want to connect it. Okay, आप जब कनेक्ट करने के लिए जब अपने आईटीटीसी कैंपस से वायर लेके चलोगे, ओके, तो वायर आपका आएगा और वायर आपके अंदर जो उसका जो सिग्नल है, ओके, the signal which is transmitting from that particular AIKTC campus to the towards the Pillai college, so that signal is having some kind of strength, okay, उसकी कुछ strength होती है, okay, तो travel करने के बाद में after particular amount of distance, that signal का जो डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगा, ओके, उसके सिग्नल्स का जो है ना, कॉज ऑफ द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बाहर के जो इंटरफेरेंस है, तो उसकी वजह से सिग्नल्स आपका वीक हो जाएगा, ओके। अगर आपका सिग्नल वीक होता है, देन दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रेंथन दैट सिग्नल, ओके। उस सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, हमको उसको बूस्ट अप करना पड़ेगा, ओके। उसको बूस्ट अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बीच में आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसका नाम है रिपीटर, ओके। व्हाट रिपीटर विल डू, रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव अ सिग्नल and retransmit it at a higher level or higher power or onto the other side. ये साइड से आया है, उसको बूस्ट अप करेगा और आगे भेज देगा, ओके, so that the signal can cover longer distance, okay। वापस इमेजिन करो, ओके, एआईकेटीसी से आप चले, आपका सिग्नल एआईकेटीसी से चला है, चलते चलते समझ लो थाना नाका तक, उसका जो इमेजिन करो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ओके। अदरवाइज योर twisted pair cable can cover a long distance also, your coaxial cable, your fiber optic cable can cover long distance also, but imagine आपका डिस्टेंस थाना नाका तक पहुंचा, आपका सिग्नल थाना नाका तक पहुंचा, थाना नाका तक पहुंचने तो वीक हो गया, वापस ने क्या किया, वहाँ पर आपने एक रिपीटर लगाया, ओके। आफ्टर सिचुएटिंग अ रिपीटर, तो रिपीटर ने क्या किया, आपके सिग्नल को बूस्ट अप किया, सिग्नल का पावर अप किया और उसको फिर आगे फॉरवर्ड किया, ओके। आफ्टर फॉरवर्डिंग दैट पर्टिकुलर सिग्नल टू अदर साइड, वो और आगे तक गया, एंड आफ्टर कवरिंग 500 मीटर से और 1 किलोमीटर, सो अगेन आपका सिग्नल वीक हुआ, ओके, अगेन यू रिक्वायर्ड वन रिपीटर, ओके। सो दिस इज हाउ योर रिपीटर वर्क्स, ओके, where repeater is the one or is the device which is used to which receives the signal and retransmit it at a higher power or higher level, okay, onto another site। यहाँ से सिग्नल आया है, बूस्ट अप करेगा और उसको आगे भेजेगा आपका रिपीटर, ओके। सो रिपीटर हैव टू पोर्ट्स, बेसिकली रिपीटर्स में 2 पोर्ट्स होना भी चाहिए, एक आने वाला पोर्ट और एक जाने वाला पोर्ट, ओके। सो repeaters have 2 ports, so cannot be used to connect for more than 2 devices। तो बेसिकली जो पहले रिपीटर्स आते थे उसमें 2 ही पोर्ट होते थे, अभी अभी कैसे आते हैं मैं नहीं बना पाएंगे, लेकिन जैसे उसके कुछ बहुत सारे इमेजेस आपको मिल सकते हैं, ओके। सो रिपीटर के बारे में समझ में आया, रिपीटर इज द डिवाइस विच फंक्शंस एट द फिजिकल लेयर, बिकॉज आपका बिल्कुल क्लोज कॉल है, यानी आपके जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन वापस आते हैं, एक बार देखते हैं। So see, this is the physical. You can see the screen. This is the uh, this is the physical communication which is going on. Okay, आपका ये AIKTC campus, ये आपका device A which is situated in the AIKTC campus. Your device B is situated in the Pillars campus. Okay, तो ये जब आपका जा रहा है यहाँ से, आपका communication, आपका जो signal है वो यहाँ से जा रहा है. You can just follow my cursor. Your signal is going through this way. So there's a close call with this physical layer. So we'll say that your repeater works or function at the physical layer. Okay. So our repeater is a device which function at the physical layer. Okay. समझ में आ रहा है? Because repeater बहुत simple device है. वाइवा में छोटे-छोटे questions पूछते हैं. What does repeater do? How it works? Okay. और इसका diagram आपको आप लोग देख सकते हैं. तो बेसिकली इस तरह के कुछ डायग्राम होते हैं, तो डायग्राम एक इंटरनेट का डायग्राम है, बट यू कैन सी एक्चुअली। अच्छा, इफ़ यू हैव सीन आउटसाइड, आपने जो केबल्स जो जाते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व, देन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल जब केबल जाता है तो उसके बीच में छोटा सा प्लास्टिक का एक बॉक्स आपको दिखा होगा, ओके। दैट बॉक्स इज नथिंग रिपीटर। उसमें देखो, उसमें आपका जो ना केबल है,
आपका केबल ऐसा आएगा और आके ऐसा कर्ल मार के बॉक्स में जाएगा और बॉक्स से फिर दूसरा सिग्नल निकल के फिर आगे जाएगा. Okay, that is the repeater. We have seen it many times because repeaters are used actually because we cannot take any risk, any kind of risk, and we have to use the repeater. Okay, so repeater are the device, are the networking device which function at the physical layer and which receive the signal. Repeater का काम समझ लो आराम से. Repeater is the device which accept the signal, which receive the signal from one side, okay. Then it boost the signal up, उसका power up करेगा, and then it will retransmit the signal onto other side, okay. तो आपका repeater will receive a signal from one side, boost it up, power it up, and then retransmit it onto another side, okay. So this is the task and function of the repeater. Are you getting or not? समझ में आ रहा है? Anyone please reply. Okay, thank you, thank you. So this is it. It was the first device. Yes, Mohit. Sir, I want to ask that repeater is a amplifier or it's a regenerator? It is the amplifier. It does not. Now, now you tell me what is the difference between amplifying and regeneration? Means amplify means just boosting up the It signal. it will just boost the signal up. Okay, and a regeneration. Regeneration means uh, detecting a signal and regenerating it and No, no, then no. send it. Mohit, okay, नहीं. It will not regenerate. It will retransmit it. Okay, it will not regenerate because the whatever signal it has received, उसका जो उसका जो पावर था, उसका क्या बोलेंगे उसको जो जिस पेज से वो आया था आपके पास में यानी आपके रिपीटर तक पहुंचा था, तो उसका जो पावर है इट वाज लो नाउ. ओके, इट इज लो नाउ बिकॉज जब वो स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हाई था, but now it is low. So you need to boost it up so that it can travel for a longer distance. So it will retransmit it. It will not regenerate. It will just amplify. Okay. ओके अहमद, आवाज़ अटक रही मेरी. मैंने तो इसके लिए माइक एकदम क्लोज रखा हूँ. नदीम, ऑडियो क्लियर है? नदीम, नदीम की आवाज़ नहीं. नदीम ने सिर्फ बोला ओके. सो मुहिब, इट विल a little distortion. ओके ओके. अभी आवाज़ क्लियर है? एम आई ऑडिबल? Uh, बैकग्राउंड साउंड तो कहीं से नहीं है. so, sir, just now I have searched on Google. ओके. So it's saying repeater is used as a regenerator of a signal, रिपीटर इज यूज्ड एज रीजनरेटर. ओके. which सो also देखो, eliminates the noise from the signal. यस यस यस, बेसिकली उसका ये भी एक काम है. इट रिड्यूसेस द नॉइस आल्सो, whatever, because whatever distance it has covered till now, so it has to reduce because a lot of area it has passes. Okay, so when it was coming from that source to that particular repeater, so while electromagnetic radiation and other areas भी उसको मिले होंगे. So while coming from that location or from that area, so lot of noise has added into the signal. So उस सिग्नल के अंदर जो अनवांटेड जो नॉइज है उसको भी रिमूव करता है ये. ओके. सो बेसिकली आई थिंक रीजनरेशन से उसका आई थिंक जिसने भी वो वहाँ पे लिखा है, तो रीजनरेशन से उसका यही कंसर्न रहेगा कि it has to boost the signal by reducing or by eliminating the noise whatever is there in the signal. So when noise will be reduced or noise will be eliminated from that particular signal, so the automatically आपका signal will boost up. Okay, and it will provide some power so that your signal can travel for longer. Okay. So basically कंसर्न हमारा एक्चुअली वही है. उसका भी जो बोलने का कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि बेसिकली नॉइस रिड्यूस करना है, उसके पावर को हाई करना है, बूस्ट करना है और आगे रीट्रांसमिट करना है. ओके.
So because we can also regeneration बोले तो create an exact duplicate of the signal. तो ठीक है, चलो अभी अगर रीजनरेशन अगर सब लोग बोल रहे हैं तो रीजनरेशन को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रीजनरेशन अगर कभी सेम सिग्नल का है तो इट इज़ ओके। अदरवाइज कुछ मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड। बिकॉज अगर हम रीजनरेट कर रहे हैं कोई चीज़ को, अगर रीजनरेट करते हैं, सो इन रीजनरेशन द सेम सिग्नल हैज़ टू बी डुप्लीकेटेड एज सेड बाय द कासिम। ओके, कासिम ने अभी लिखा है कि अगर सेम सिग्नल को का डुप्लीकेट अगर कर रहे हैं सो इट इज़ ओके, you can use the term regeneration also. And if it is not like that, if other things are also added, some modification is being done, then this is not being done in the repeater. Okay, so we can use this term, not a big deal, but the main purpose, the main concern is that your repeater is going to eliminate the noise or reduce the noise whatever is there in the signal, and it will boost the boost the power. Okay, रीजनरेशन में सिर्फ सेम का डुप्लीकेट, रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ रिपीटर, रीजनरेटर। Okay, so number of names can be given, multiple names can be given for this repeater also. Okay, so there's not a big deal. Okay, so you just have to concentrate on the main the concept, what is there behind this repeater, repeater का क्या काम है आपको अगर वो समझा तो that is enough, you can name it anything, okay, whatever you want. So चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। Hub. The next device is a hub. Okay, so basically hub is the uh, we usually say hub is the dumb device. Okay, many time you have heard like this statement also. The hub is the dumb device. So hub is the device which just accept the signal and it broadcasts to all the port. Okay, so if you will find the, this is the very simple diagram of hub. Okay, if you will find the working of hub, अगर आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे, you will find the videos regarding hub, how it works actually. So let me explain you. Um, whenever any of the port, okay, whenever any of the port, because उसके अंदर आपको मुश्किल से कितने, कभी 4 पोर्ट का हब दिखेगा, कभी 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट का, इतने आपको पोर्ट के हब दिखेंगे। सो बेसिकली हब जो होता है आपका डम डिवाइस होता है। तो डम डिवाइस मतलब कि it accept the signal and it will broadcast to all the terminals which are connected with that particular hub. Okay, for example मेरे पास में एक हब है। okay, मेरे पास में एक हब है, say 4 ports. Okay, I'm having one hub which is of 4 ports. Okay, and that 4 port में ये हर पोर्ट के ऊपर, चारों पोर्ट के ऊपर 4 टर्मिनल्स कनेक्टेड है। okay, so 4 terminals are connected to that particular hub, terminal number 1, terminal number 2, 3 and 4. Okay, so 4 terminals are connected. Now terminal number 1 is sending some data to terminal number 4. Okay, terminal number 1 or laptop number or desktop number 1 wants to send some message or some data to terminal number 4. Okay, then what will happen with the help of hub, when terminal number 1 will send the data, when terminal number 1 will send the data, then the data will be broadcasted to all the ports, okay, which are connected to that particular hub. तो जो डेटा जो सेंड किया है वो 2 को भी जाएगा, वो 3 को भी जाएगा, वो 4 को भी जाएगा। ओके, जब 2 के पास में जाएगा तो 2 उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पैकेट और दैट डेटा वाज नॉट इंटेंडेड फॉर द टर्मिनल नंबर 2, so it will be rejected by terminal number 2. It goes to third PC also, third terminal also, it also reject the data because it is not intended for the terminal number 2. Then it goes to the terminal number 4. So उसके अंदर उसका एड्रेस भी रहेगा, जो भी पैकेट टर्मिनल नंबर 1 से आया है, जो डेटा टर्मिनल नंबर 1 से आया है, सो वट एवर एड्रेस जो भी रहेगा वो इसको मैच करेगा, तो हाँ इट विल एक्सेप्ट द डेटा। ओके, सो बेसिकली ये पूरे बोलने का पर्पज ये है, तो समझ इज दैट your hub is a dumb device because it just broadcasts the data or the message or the information whatever it receive on any port। ठीक है, सो आपका हब क्या करेगा, जो भी डेटा उसको रिसीव करेगा उसको वो अपने सारे पोर्ट को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ओके, इट इज़ नॉट अ स्मार्ट डिवाइस। इसी को कंपेयर करते हैं जब आपके स्विचेस से, तो स्विचेस आर द इंटेलिजेंट डिवाइसेस, your hub is the dumb device and your switch is the intelligent device. Your switch does not work in this way.
When switch received any data from any of the port, any of the terminal, it first check the data. Okay, उस डेटा के अंदर चेक करेगा कि वेदर this data is intended for which terminal. So it will send or it will forward the packet or data to that particular port only or to that particular terminal only. Okay, so it will not send to all the port or to all the terminals which are connected to that particular switch. तो स्विच को इसीलिए हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, एंड योर हब इज द टर्म डिवाइस बेसिकली. सो हब के बारे में छोटा सा, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट इट, एंड दिस इज द वेरी सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक छोटा सा सेटअप, छोटा सा लैन बनाना है, कंसिस्ट ऑफ 5 कंप्यूटर्स. ओके, कंसिस्ट ऑफ 6 कंप्यूटर्स. ओके, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, सो जितने आपको चाहिए तो आप एक छोटा सा हब लाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट. बेसिकली अगर आप 8 पोर्ट्स का लाते हैं तो आपका 6 का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, एंड सो ऑन. ओके, सो नंबर ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ पोर्ट्स जितना भी आपको चाहिए यू कैन गेट इट. ओके, तो आपने हब लाया, हब कनेक्ट करेंगे, और आपने फिर सारी मशीन्स को कनेक्ट करके सब मशीन के अंदर जो भी सेटिंग होती है आईपी सेटिंग, तो आईपी सेटिंग विल डू इट. ओके, so that all will connect with each other and you can share whatever information you want to share. Okay, a simple LAN or simple network can be constructed with the help of hub. Okay, so hub के अंदर hub is the second device, the simplest networking device which receive whatever it receive, whatever data it receive, it just broadcast the data to all the machine or all the terminal connected to that. So this is the second device about hub. Okay, you will find a lot of information about the hub on the internet also. Okay, so the first device is repeater, second device is hub. पहले वाले स्कीम में, पहले वाले सिलेबस में नेटवर्किंग डिवाइसेस का अच्छा अच्छा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी था. अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, जस्ट एक नेटवर्किंग डिवाइस ब्रैकेट में लिख दिया है कहीं पे. सो अगर कभी इसको हम लोग अगर देखते हैं, अगर अच्छे से करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग की चांसेस है, आप लोग उसके बारे में अच्छा खासा लिख भी सकते हैं. ओके, फ्यू पॉइंट्स आर रिटन ओवर हियर. अब इसके बारे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं. इट इज द डिवाइस फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक ईथरनेट डिवाइसेस टुगेदर एंड मेकिंग देम एक्ट एज अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट. सो सिंपल एक नेटवर्क सेगमेंट बनाना है, एक नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए हम लोग हब यूज़ कर सकते हैं. ओके, hub works at the physical layer of the OSI reference model. So remember, आपका पहला वाला डिवाइस दैट वाज रिपीटर, इट आल्सो फंक्शंस एट द फिजिकल लेयर, और आपका जो हब है वो भी आपके फिजिकल लेयर पे काम करता है. ओके, द डिवाइस इज द फॉर्म ऑफ मल्टी पोर्ट रिपीटर. ओके, अभी आपने रिपीटर का फंक्शन देखा. रिपीटर व्हाट इट रिसीव, इट फॉरवर्ड, इट रीट्रांसमिट द सिग्नल टू अनदर पोर्ट. ओके, इन जहाँ से आ रहा है सिग्नल वहाँ से लिया और आगे उसने उसको फॉरवर्ड किया. तो अब यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है. नॉट जस्ट यू कैन, देखो वाइवा के अंदर ये भी कभी कभार होता है, पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपीटर एंड हब. ओके, सो रिपीटर आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है, उसके अंदर दो ही पोर्ट है, इनकमिंग पोर्ट, आउटगोइंग, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी. तो एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग. तो इनकमिंग से ले रहा है, बूस्ट कर रहा है और आगे फॉरवर्ड कर रहा है. ओके, हब के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हैं, so it is also called as multi-port repeater because ऐसा repeater जिसके multiple ports हैं. Okay, so जो भी आपका for example port number 1 is sending some data, so it will be broadcasted to all the port. Okay, so सबके पास में वो क्या हो रहा है, broadcast हो रहा है. So it is a multi-port repeater. So this is all about the hub. आगे बढ़ते हैं हम लोग, because हमारा lecture actually 45 minutes का है, and we have to cover all these devices. These devices are very simple and we'll cover it inshallah. So till now 2 devices. Anyone wants to share his views? आगे बढ़े. Hub is a passive device and repeater is a active device. Very good. हब के अंदर एक्चुअली उसको अगर कैटेगराइज अगर आप करने जाए तो उसके अंदर भी एक्टिव हब और पैसिव हब दोनों होते हैं. ठीक है, तो दोनों के कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों को थोड़ा कैटेगराइज करते हैं. हब एक्टिव डिवाइस, सॉरी एक्टिव एंड पैसिव हब बोलते हैं. ओके, आते हैं आपके नेक्स्ट डिवाइस पे, दैट इज स्विच. ओके, ये आपका स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस है.
वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द स्विच ओनली. सो स्विच आपका है विच इज़ अ नेटवर्क स्विच और अ स्विचिंग हब इज़ अ नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क सेगमेंट बेसिकली. तो पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए पूरे नेटवर्क को अगर हैंडल करना है, बिकॉज देखो जो काम आपके हब से नहीं हो पाएगा वो काम आपका स्विच करेगा. ओके. सो व्हेन you were talking about the hub, so you were talking that you need to connect two computers or three computers or four computers or five computers, number of computers. Okay. When this is the matter comes of the network of the segments, when you are having one network, say this network number one, this is network number two. Okay. In that particular network we are having a number of five computers, and we have second network, and in second network we are having six computers. Okay. So this network number one consists of five computer and network number two consists of six computer. अभी दोनों को आपको कनेक्ट करना है, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है. So you can use intelligent device, smart device, a smart networking device named as a switch. Okay. So switch will connect these two network segment. इन दो segment को network number one, network number two को intelligently connect करेगा. Okay. Because इसके अंदर number of pieces है, इसके अंदर भी number of pieces है. Okay. अब ये इसके अंदर पीसी नंबर 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जांपल 5 और यहाँ पे 6 है. इसमें से किसी पीसी को इस नेटवर्क के किसी पीसी को अगर डेटा सेंड करना है, कुछ शेयर करना है, तो वहाँ पर आपका स्मार्टली आपका जो बीच में इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि स्विच है, इट विल हैंडल द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड डेटा. स्मार्टली उसको हैंडल करेगा, प्रॉपरली उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेना है, स्विचिंग टेबल मेंटेन करेगा और उसके बाद में आपके डेटा को आगे फॉरवर्ड भी करेगा. ओके. सो इट इज़ कॉमनली रिफर्स टू द नेटवर्क ब्रिज. तो दो नेटवर्क के लिए एज अ ब्रिज भी एक्ट करता है. इट प्रोसेसेस एंड रूट्स डेटा एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल. तो भाई आपको ये भी बताएगा, थोड़ा सा रूट भी आपको बताएगा. हालांकि तो इसके लिए हमारे राउटिंग एल्गोरिथम है जो कि हमको रूट बताता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ. एक सेकेंड, मेरे पास में कुछ रहना तो मैं देखता हूँ. स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास में. बहरहाल कोई बात नहीं. सो अगर मेरे पास में अगर आप लोग मेरे फेस देख सकते हैं तो मैं यहीं पर थोड़ा सा गेस्चर करके बता रहा हूँ. ओके. सो बेसिकली हमारे पास एक नेटवर्क वन है, एक नेटवर्क टू है. ओके. नेटवर्क वन के अंदर हमारे पास में 5 कंप्यूटर, नेटवर्क टू में वी आर हैविंग 6 कंप्यूटर. ओके. नेटवर्क नंबर वन के फर्स्ट कंप्यूटर में फर्स्ट कंप्यूटर को सेंड करना है नेटवर्क नंबर टू के फर्स्ट कंप्यूटर को. जब डेटा सेंड करना है तो ऑब्वियसली आपका जो नेटवर्क नंबर वन का जो फर्स्ट कंप्यूटर है उससे जब डेटा निकलेगा, जब डेटा पास होगा, so that data goes to the nearest networking device. हो सकता है आपका जो नेटवर्क नंबर वन हो, इट इज़ कनेक्टेड टू एनी ऑफ द स्मॉल डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस. फिर वो डिवाइस आपका कनेक्टेड होगा आपके स्विच से. फिर स्विच से आपकी लाइन जाएगी नेटवर्क नंबर टू के नेटवर्किंग डिवाइस को, और नेटवर्क नंबर टू का जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो आपके सारे नेटवर्क नंबर टू के पीसीस को, वो आपके टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे. सो इफ़ यू कैन, अगर आपको समझ में आ रहा है अगर कभी ये चीज़ तो इट इज़ गुड. वरना उसको डायग्राम, बिकॉज डायग्राम के लिए राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी स्मार्ट बोर्ड. मैं आई वाज सर्चिंग फॉर एन एप्लीकेशन दैट यूजेस सम काइंड ऑफ पेन और कुछ शेप्स वगैरह हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है पॉसिबल. आई ट्राई टू डू. एग्जाम्पल ये आपका एक नेटवर्क नंबर वन और ये आपका नेटवर्क नंबर टू. ओके. ये आपके दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क वन एंड दिस इज नेटवर्क टू. ओके. अब ये दो नेटवर्क को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो उसके लिए मुझे बीच में स्विच लगाना है. तो अगेन फिर यहाँ पर मैं एक और एक बड़ा इशू है इसके लिए. हाँ, शेप कौन खेल रहा है कि मैंने लगाया एक स्विच यहाँ पर. ओके. सो दिस इज माय स्विच. ओके. विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस. अब पहली बात है ये आपका नेटवर्क नंबर वन को हैंडल, इसमें जो नंबर ऑफ पीसीज है, इसमें जो नंबर ऑफ पीसीज को हैंडल करने के लिए से मेरे पास में यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है. छोड़ो चलो.
तो जस्ट इसको इमेजिन कर लो थोड़ा, यहाँ पर आपके 5 कंप्यूटर्स है, यहाँ पर 5 कंप्यूटर्स है। अब जब ये आपके नेटवर्क के अंदर जो 5 कंप्यूटर्स है उसको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑब्वियसली एक नेटवर्क डिवाइस लगाना पड़ेगा। से आप सोचो इसको आपने लगा दिया, हब लगा दिया यहाँ पर एक, ओके। तो वैसे ही एक नेटवर्किंग डिवाइस आपने यहाँ पर भी लगा दिया, एक हब, ओके। और बाद में फिर आपने यूजिंग यूजिंग ये जो आपका है कनेक्टेड है, आपका इससे कनेक्टेड है, ओके। उसके बाद में आपका ये वाला इज नॉट फिजिबल, ये इसको कनेक्ट है, एंड बोथ द थिंग्स आर कनेक्टेड। ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस आपके स्विच से कनेक्टेड है, बिकॉज इसके अंदर का जो सिस्टम है, इसके अंदर जो टर्मिनल है, वी कैन नॉट कनेक्ट द सिस्टम डायरेक्टली टू द स्विच, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक डिवाइस लगाना पड़ा, एनी डिवाइस यू कैन यूज, ओके। यहाँ पर आपको एक डिवाइस लगाना पड़ा, तो डिवाइस से आपने स्विच से कनेक्ट किया, और उसके बाद में फिर मैं एक और लाइन लेता हूँ और उसको हम यहाँ से इससे कनेक्ट कर देंगे। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट फिजिबल, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द restriction। सो थोड़ा सा ये टाइप का कुछ एक आर्किटेक्चर या एक मॉडल हो सकता है इन विच आपका स्विच काम कर रहा है। तो स्विच इज द इंटेलिजेंट डिवाइस वर्किंग इन the between of two network or two segment, okay। It is also working as a network bridge, okay। And it processes and routes data at the, हमें आपको एक्चुअली ये समझाना चाह रहा था how it route the data, because यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन, चार, पाँच, छः, ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंप्यूटर है आपका, यहाँ पर इस लोकेशन पे, तो पहले डेटा आपका पास होना है, तो उसको यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, बिकॉज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। तो आपका डेटा कैसे जाएगा एक्चुअली यहाँ तक, तो ये रूट भी डिसाइड करना होता है। आपका पैकेट जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि इफ आई वांट टू गो फॉर मुंबई, ओके, मुंबई आपको सीएसटी जाना है, ओके। सो आई हैव मल्टीपल ऑप्शन, ओके। आई कैन गो वाया लोकल ट्रेन, दिस इज द लॉकडाउन राइट नाउ, बट स्टिल वी आर हैविंग ऑप्शन, वी कैन गो वाया लोकल ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं आप, बाइक के थ्रू भी जा सकते हैं, आपके पास में रूट मल्टीपल, आप वाया थाना होके भी जा सकते हैं। So we have multiple routes, okay। So this is up to you that which route you will occupy, okay। कौन सा रूट आप लोगे, okay। तो obviously आप वो वाला रूट लोगे which is सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ, ओके। सो ये तीन पैरामीटर वाला रूट आप हमेशा एक्सेप्ट करोगे, आप हमेशा लोगे, ओके। तो आपका जो नेटवर्क पैकेट है वो एक सोर्स से निकलेगा, फॉर एग्जांपल दिस नेटवर्क नंबर 1, ये आपका सोर्स है, इसके अंदर का जो सिस्टम आपका सोर्स है। तो जब यहाँ से निकलेगा तो कौन सा रूट लेना चाहिए, पहले यहाँ पर आएगा, तो यहाँ नेटवर्किंग डिवाइस आपका स्विच से कनेक्टेड है, ओके। जरूरी नहीं कि ये स्विच तो आपके दो नेटवर्क ही कनेक्टेड हो, ओके। हो सकता है मल्टीपल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर स्विच। तो स्विच विल डिटरमाइन दैट के आपके उस आईपी पैकेट को, उस नेटवर्क पैकेट को कौन से रूट से जाना चाहिए, सो दैट इट विल रीच द डेस्टिनेशन, ओके। तो ये सब पूरा जो बताना है ये आपका स्विच बताएगा, बिकॉज इट इज द इंटेलिजेंट डिवाइस, एंड ये आपको रूट भी बताएंगे, ठीक है। ये आपका काम राउटिंग भी, आपका राउटर भी करता है, राउटर राउट्स बिटवीन द नेटवर्क, एंड बेसिकली आपके जो पैकेट है उसको रूटिंग करने का, एंड इट मेंटेन द राउटिंग टेबल, ओके। आपका स्विच स्विचिंग टेबल मेंटेन करता है, राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। दे जस्ट, कोई भी जब पैकेट आता है, when it receive these networking devices, whenever it receive any packet, so first it receive it, it takes the information, कहाँ से आया है, यहाँ से, कहाँ जाना है, तो यहाँ पर जाना है, it save the information, okay। कि भाई ये वाले अगर कभी आईपी पे जाना है तो ये वाले पोर्ट पर अपनों को डालना पड़ेगा, ये वाले पोर्ट पर पैकेट को डालना पड़ेगा। तो ऐसे स्विचेस एंड राउटर मेंटेन द टेबल्स विद देम, ओके। तो जब टेबल मेंटेन करते हैं तो नेक्स्ट टाइम when any of the IP packet comes to that particular switch, so it first check कि वो वाले, अगर आपका डेस्टिनेशन सेम है, अरे हाँ, तो उसको फिर सर्च करने की जरूरत नहीं, इट हैव द रेफरेंस, तो वो रेफरेंस को देख के फिर आपके आईपी पैकेट को उसके हिसाब से फॉरवर्ड करेंगे। सो लाइक बहुत सारी डिटेल है, आगे चल के हम लोग उसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो स्विच इज बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर स्विचिंग हब या कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क सेगमेंट, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, दो सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यू कैन यूज switch, which is the intelligent device, okay। And it does not it does not broadcast the packet as it is, okay। It check the packet and it send to the intended and for the
फॉर द डेस्टिनेशन कंप्यूटर और डेस्टिनेशन टर्मिनल होंगे उठा के, जैसे कि आपका हब करता है, हब के जैसा काम नहीं करता। ये स्मार्टली काम करेगा, पैकेट को सर्च करेगा, स्कैन करके देख के उसका जो डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से उसको बराबर डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करेगा। ओके, एंड दिस इज द वन विच वर्क्स, एंड इसमें लिखा नहीं है ये आपका ऑफन द लेयर 3 स्विचेस। हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर आपके अलग अलग टाइप के स्विचेस, अगर आप नेट पे सर्च भी करोगे तो आपको उसके अलग जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेज स्विचेस, अनमैनेज स्विचेस, ये आप लोग के सिलेबस में तो नहीं है, बट इसके टाइप्स भी होते हैं। मैनेज स्विचेस आर वेरी इंटेलिजेंट, आप थोड़ा सा और आगे लेवल के होते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से आपके नेटवर्क्स को, आपके नेटवर्क सेगमेंट्स को मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं। ओके, तो छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दी स्विच। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट। वी आर नॉट हैविंग मच टाइम, ओनली 5 मिनट्स आर रिमेनिंग, बट स्टिल वी कैन विल सी कहाँ तक जा सकते हैं। तो एक आपका डिवाइस, ऑल दिस डिवाइसेस आर नॉट, दीज आर ऑब्सोलीट नाउ, अभी यूज तो नहीं होते, बहुत कम यूज होते हैं। एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट दी ब्रिजेस? ये खाली दो नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। ओके, इट वर्क्स एट द लेयर 2, दैट इज द डेटा लिंक लेयर। ओके, एनीवन? मैं नहीं बोलता रहूँगा, आप भी कुछ बोलो। Anyone having any idea about the bridges? Want to share some information about the bridges? Please come on. कोई बोलेगा? अमान, मुहिब, सलवा, ओमकार, हारिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई बोले कि नहीं? एम आई ऑडिबल? आवाज तो मेरी आ रही है? हाँ मुहिब। Sir, I want to ask whether these all devices are base or broad. Means, I'm unable to hear you properly. Muhib, please be loud. sir, I want to ask that these all devices, whatever you have listed, Okay. bridges and this all, they all work on the base functionality or broad functionality. Means Means basing based. means sending one signal to another on a one port and sending more than one signal on a single port. No, no, no. Broad means sending more than one signal. Okay, broadcasting and unicasting, you mean to say? Yeah. Okay. So this okay. So as far as these devices are concerned, like a repeater, so it just broadcasts to another port, that is from in port to out port. The second one is like a hub which actually broadcasts to all the port, and the switch which does not broadcast the signal, which transmit the signal to the intended port only. Okay, your switch, your router. Okay, so the remaining devices does not broadcast it. Okay, there is only one device, that is the repeater and modem, because in repeater we are having only two ports, so it just when अगर कभी ये ब्रॉडकास्ट करता है तो खाली बस एक ही पोर्ट पे यानी आउट पोर्ट पे जाएगा, एंड इन केस ऑफ हब इट विल ब्रॉडकास्ट टू ऑल द पोर्ट। तो ये दो केसेस में आपका ये ब्रॉडकास्ट होगा, एंड रिमेनिंग केसेस में जो बाकी आपके डिवाइसेस है इसमें यूनिकास्टिंग होगा टू द इंटेंडेड पोर्ट ओनली, टू द डेस्टिनेशन पोर्ट ओनली। Okay, sir. Okay, Mohit? Yes, Okay, sir. Thank you. okay. Thank you for asking the question. Again, we had discussion about the router. राउटर के बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ते ही जाएंगे। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जस्ट राउटर के बारे में बात भी की। Just will read the first statement what is written over here. A router is an electronic device that interconnect two or more computer networks. So basically, जैसा आपका switch was working, like switch, this router is also works. Okay. इतना है कि इसके अंदर आपके राउटर्स में कुछ और भी फंक्शनैलिटीज होती है जो कि नेटवर्क्स लेवल पे, बिकॉज बेसिकली इट राउटर राउट्स द पैकेट, ओके, राउट्स द सिग्नल। तो बेसिकली आपका ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इंटरकनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क। So it is not necessary that it connects or it interconnects only two networks. It may connect number of networks with each other. Okay, and it also maintain routing table as we have discussed till now, right now. So router भी आपने देखा ही होगा अपनी
स्विचेस तो आपने देखा ही है, हमारी हर लैब के अंदर यू विल फाइंड स्विचेस। हमारे लैब वन के अंदर एकदम डिटेल के अंदर यू विल फाइंड वन स्विच, ओके, इसको सामने से शो पोर्ट के लगाए हैं। सो ऑल दी अदर स्विचेस ऑफ अराउंड 32 पोर्ट्स का कुछ स्विचेस हैं, बिकॉज वी आर हैविंग कैपेसिटी अराउंड 24+1 की कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से वी नीड 32 पोर्ट का स्विचेस। तो सारे स्विचेस हैं, राउटर्स हम लोग ने नहीं लगाए, स्विचेस का हमने यूज़ किया है। सो बेसिकली सब काम उसके सेम ही है। बेसिकली नेटवर्क्स के बीच में राउट्स करने के लिए, नेटवर्क्स के बीच में आपके पैकेट्स को इन और आउट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज आपका गेटवे है। गेटवे को हम लोग थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं तो हमको दिखता है गेट अवे, विच गेट अवे फ्रॉम द नेटवर्क, ओके। तो उसको हमारे एक सर थे तो हमको ऐसे ही समझाते थे, गेटवे इज द नेटवर्किंग डिवाइस विच गेट अवे द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। लेकिन इसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी है, जो कि अभी सारी जो फंक्शनैलिटी है वो आपके जो आपके रिसेंट स्विचेस एंड राउटर है उसके अंदर आ चुकी है। इन अर्लियर डेज पहले गेटवे अलग से डिवाइस यूज करना पड़ता था। यू विल फाइंड, मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, यू विल फाइंड दिस डायग्राम। यू हैव अ नेटवर्क, ओके, यू विल फाइंड दिस नेटवर्क, न्यूयॉर्क वगैरह कॉर्पोरेट लेन वगैरह लाइन लिखा हुआ है। देन दिस इज द गेटवे डिवाइस, ओके। तो गेटवे डिवाइस का एक्चुअल कुछ फंक्शनैलिटीज है, कुछ काम है जो कि वो अलग से परफॉर्म करता था। एंड व्हाट आर दोज फंक्शनैलिटीज, एवरीवन जस्ट थोड़ा यहाँ पर फोकस करना। A gateway may contain devices such as protocol translator, first, second, impedance matching devices, third, rate converters, fault isolators, and signal translator as necessary to provide system interoperability. तो यहाँ पर एक्चुअली व्हेन योर पैकेट इज गोइंग, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा बताया, जस्ट यहाँ पर बताया, वन पैकेट इज गोइंग फ्रॉम दिस नेटवर्क टू दिस नेटवर्क, ओके। जब वो यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है वाया दिस नेटवर्किंग डिवाइस देन स्विच ऑन दिस, तो यहाँ पर अब आपके जो स्विचेस हैं, एक्चुअली मैंने पूछा था अपने सिस्टम एडमिन से रिगार्डिंग दिस, तो ही टोल्ड मी दैट के सर ऑल दी फीचर्स आर already embedded in the switches and router right now, but in earlier days we used to have the gateway as a separate device, because हो सकता है कि आपका जो नेटवर्क नंबर वन है इट इज यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजी, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ओके, एंड डिफरेंट आर्किटेक्चर दे आर यूजिंग, ओके। तो और यहाँ पर जो नेटवर्क नंबर टू है इट इज यूजिंग डिफरेंट टोपोलॉजी, डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट प्रोटोकॉल दे आर यूजिंग, ओके। तो जब यहाँ का अलग है और यहाँ का अलग है, तो दोनों के बीच में योर गेटवे विल एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। होता है ना आपके सामने कि हमारे हम लोगों को किसी की लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आती है, सो वी यूज टू हैव वन ट्रांसलेटर सो दैट इट विल ट्रांसलेट द थिंग वॉट एवर जो भी हम लोग बोलेंगे वो उसको बताएगा, उसका हमको बताएंगे। तो वैसे ही आपका गेटवे डिवाइस विल वर्क ओवर हियर which translate the signals which are coming from network 1 and it will give to the network 2, okay। और network 2 से जो आएंगे वो उसको ट्रांसलेट करके network 2 को network 1 को बताएंगे। सो लाइक उसके ऐसे ही और भी काम थे जो कि आपका गेटवे पहले करता था, बट नाउ ऑल दोस फीचर्स हैव बीन एम्बेडेड इनटू द स्विचेस एंड राउटर्स इटसेल्फ, so no need to have this device as a separate. It also requires the establishment of a mutually acceptable administrative procedure between both the network. तो दोनों नेटवर्क्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, सो वो भी करने के लिए आपका गेटवे पहले यूज होता था। बट नाउ मैं अभी वापस बोल रहा हूँ कि दीज डिवाइसेस आर still जहाँ पर ओल्ड नेटवर्क है, ओल्ड आर्किटेक्चर है, दे आर स्टिल यूजिंग, बट नाउ दीज डिवाइसेस आर ऑब्सोलीट, दे आर नॉट एनी मोर, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एंड उसके अंदर ये सारे फंक्शन और वी कैन से फंक्शनैलिटीज होते हैं, ओके। सो ये थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द गेटवे। विल फाइंड a separate device is used between this network and this network. Then last one, I think this is 48. I'll take more 2 minutes only. We are exceeding 5 minutes, so sorry for this. This modem, okay, the last one, you are familiar with this device, that is modem, which is a combination of modulator and demodulator, okay. So basically आपके घर में काफ़ी लोगों के घर में आप लोगों ने you have used the telephone line, BSNL, MTNL telephone line, okay. So we used to have in our earlier days we used to have internet connection from those from telephone line, okay। तो we used to have internet connection from those telephone line, तो उसके लिए हमको एक अलग से मॉड्यूलेटर लगाना पड़ता था, ओके। तो बेसिकली जो आपका जो टेलीफोन लाइन है
that telephone line is using analog signals. You have idea about it. So your telephone line is using analog signals, okay, and your computer is using digital signal, that is 0101, और आपका analog signal sinusoidal wave, okay. So अब आपका जो टेलीफोन लाइन के थ्रू जो इंटरनेट आ रहा है, that internet which is coming from the telephone line, that internet is of sinusoidal wave, मतलब कि analog signal है, and your analog signal cannot be understood by your computer, okay, and your computer is having digital signal which cannot be understand by your आपका टेलीफोन लाइन. सो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए वी हैव वन डिवाइस विच इज कॉल्ड एज मॉडम, दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. तो बेसिकली आपका जो मॉडम है इज अ डिवाइस और अ प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट, कंप्यूटर आपका दैट कंप्यूटर टू ट्रांसमिट द डेटा over, for example, telephone line or cable lines, whatever is it. So we are considering the telephone lines, okay. तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करेगा, ओके. एंड डीमॉड्यूलेटर जो वो आपका दोनों का दोनों जो मॉड्यूल है वो एक ही डब्बे में, दैट इज कॉल्ड मॉडम, ओके. सो मॉडम इज द डिवाइस. मॉडल के अंदर दो पार्ट, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. सो मॉड्यूलेटर इज ट्रांसफरिंग और ट्रांसलेटिंग द डेटा, द डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल, एंड डीमॉड्यूलेटर इज ट्रांसफरिंग द सिग्नल फ्रॉम, सी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में. तो बेसिकली दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास में मॉडर्न डिवाइस है, ठीक है. दैट्स ऑल वी हैव रिटन ओवर हियर. यू विल फाइंड द diagram also. Time is over, sorry. So this is the analog signal. See, you can see the poles, हमारे telephone lines के poles है, यहाँ पर analog signal है. You will find analog, 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 and we have this modem which is converting the analog signal into digital, that is 01010, and the computer is getting this 0101 signal. अब जब कंप्यूटर से जब सिग्नल जाएगा तो 0101 में जाएगा, and your demodulator, another module, demodulator will translate it into the analog signal, okay. So that's all for the networking devices. Thank you so much. Thank you so much for today's session. I'm posting the link. Chat box. Yes, Arbag. It will convert analog to digital and digital to analog. Thank you so much. मैंने attendance link भेजा हूँ. Still, sorry for the 5 minutes over. 5-6 minutes. You can mark your attendance with this link. Okay. Thank you so much. Forty-five students have responded till now. 11:53. Again for 2 minutes. Mark your attendance as it is possible. So at 12 p.m. I will close the link.
सर आपने जो लिंक भेजा है उस पर डेट 16 लिखी हुई है अटेंडेंस की।